1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मार्क 14 चैप्टर 27 वर्स से 52 वर्स तक, नंबर्स 27 चैप्टर 28 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन से 52 वचन और गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 28 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 14 चैप्टर 27 वर्स से 52 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, झूठ को पर्दाफाश कीजिए, भ्रम और धोखा हमारे सामने से पिता परमेश्वर हटा दीजिए। उसके पीछे जो असलियत है खुदा, वो हमारे सामने एक्सपोज कर दीजिए, हमारी समझ में आने दीजिए, ताकि पिता हम धोखा ना खाए, हम झूठ को सच ना माने और सच को झूठ ना बना दे। आबा फादर गॉड, हमारे अंदर कोई ऐसा अवस्था ना रहे जो पिता परमेश्वर अंधेरा है। मेरे खुदा परमेश्वर, हर एक छुपा के रखा हुआ शैतान का हथियार जो भी अंधेरा है, खुदा परमेश्वर आज ये वचन उसका सामना करे। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के द्वारा परमेश्वर, तेरे सच्चाई का परमेश्वर हमारे अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ रिलीज हो जाए। और हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ये सच्चाई हमारा जीवन है, हमारे आत्मा है। आबा फादर गॉड, हमारे समझ और ज्ञान में जो कुछ भी है, उन सब बातों में पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, तू बढ़े और हम घटे। मेरे पिता परमेश्वर, आज जिस तरह से तूने हमें जीत दिलाई है खुदा, वो जीत हमेशा के लिए कायम है। अब फादर गॉड, जो पाप के अंदर बैठकर शत्रु के काम कर रहा है, वो सड़ने के लिए तूने नियुक्त कर दिया है। थैंक यू फादर गॉड, तू यहाँ के प्रधानता खत्म करने के लिए उठ चुका है। यहाँ के ऊपर खुदा परमेश्वर तू मरी को भेज रहा है, जो मरी दुनिया के अंदर तहलका मचा रही है, इसी एरिया के अंदर हमें सताने वालों के लिए तूने रिलीज कर दिया है, जिसके कारण खुदा परमेश्वर उनका सड़ना निश्चित कर दिया है तूने। थैंक यू फादर गॉड, तू यहाँ पर धार्मिकता को स्थापित कर पिता, और हमारे द्वारा तेरे काम पूरे कर परमेश्वर। तेरे राज्य की तैयारी हमारे अंदर से होने दे, और जो तू चाहता है वही यहाँ पर रहे, जो तू नहीं चाहता है वो हमारे साथ ना रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। मार्क 14 चैप्टर 27 वर्स से 52 वर्स तक। And Jesus saith unto them, all ye shall be offended because of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. But Peter said unto him, although all shall be offended, yet will not I. And Jesus saith unto him, verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. But he spake the more vehemently, if I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. And they came to a place which was named Gethsemane. And he said to his disciples, sit ye here, while I shall pray. And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy, and saith unto them, my soul is exceeding sorrowful unto death. Tarry ye here and watch. And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless,
not what I will, but what thou wilt. And he cometh and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldst not thou watch 1 hour? Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. And again he went away and prayed and spake the same words. And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy, neither wist they what to answer him. And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest. It is enough, the hour is coming. Behold, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise up, let us go. Lo, he that betrayeth me is at hand. And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the 12, and with him a great multitude, with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders. And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he. Take him and lead him away safely. And as soon as he has come, he goeth straightway to him, and saith, Master, Master, and kissed him. And they laid their hands on him, and took him. And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear. And Jesus answered and said unto them, Are ye come out as against a thief with swords and with staves to take me? I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not, but the scriptures must be fulfilled. And they all forsook him and fled. And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body. And the young men laid hold on him. And he left the linen cloth and fled from them naked. And they led Jesus away to the high priest, and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes. And Peter followed him afar off, even unto the palace of the high priest, and he sat with the servants and warmed himself at the fire. And the chief priests and all the council sought for a witness. Hallelujah. Against Jesus to put him to death, and found none. For many bare false witness against him, but their witness agreed not together. And there arose certain and bare false witness against him, saying, We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within 3 days I will build another made without hands. Okay, हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे मार्क 14 चैप्टर 14 अध्याय, मरकुस 14 अध्याय 27 वचन से 52 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। रिबलरसिया खूब लगा रहसिया दुरारिदाल बगा से, पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर पितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा।
पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। गतसमनी में प्रार्थना। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा। परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रिबांदिका बाशरा खसिराल रुबहो को सियांदुरा रदेना मखस्ते किल्लर बहका सियांदुरा रेखाब ओहतान इखम ओहश्कर खस्से हिल्लर बहका सियांदुरा रेदीन इकम बहुताल रबहा खस्से हिक बहुशरा खस्सा। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। निश्चित है खुदा परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। हमें तूने फिट एंड फिक्स किया है। ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं कि आगे हम परमेश्वर जो समय पिता तेरे सामने ला रहे हैं, उस समय का जवाब दे परमेश्वर। जो हम तेरे सामने अगले समयों में लेकर आ रहे हैं खुदा, हम मांगते हैं कि आप हमें उसका जवाब दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।